Hello students, welcome to Gnan Manjri Vidyapeeth online education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have started our unit number 1 history part. So I hope you understood very well about our first lecture of the history, and in the today's lecture we will discuss about sources of the history. So in this lecture we will discuss about the literacy sources and archaeological sources. So let's get start the topic. Okay, so first of all we will see one animated video, and this video is related to sources of history. So I'll start one video, then we will move further in the topic. So I'll start one video. Sources of history. Do you know how we find out about the past? By reading textbooks and information we find on the internet. But where did the information in our textbooks come from? And how do we know about the people who lived 10,000 years ago? There weren't any computers then. There weren't any cameras either. So how do we know so much about the past? Let's find out. Much of what we know about the people in the past comes from what they left behind. These things that were made or used by the people in the past are called artifacts. Now, who finds and studies these artifacts? The answer to this is archaeologists. They are people who find the artifacts at historical sites and study them. They help us learn more about human history. Artifacts can be of two types: literary sources and archaeological sources. Literary sources refer to written sources. Archaeological sources refer to the material things that tell us about the past. These sources tell us a lot about the time before humans knew how to write. Let's learn about both of them in detail. Literary sources can be further divided into two categories: manuscripts and inscriptions. Manuscripts are handwritten sources of information, while inscriptions are engravings on hard surfaces. Many manuscripts were written in Sanskrit. Some were also written in Prakrit and Tamil, which were the languages used by the ordinary people. They give us information about religious beliefs and practices, lives of kings, medicines, and sciences of a particular time. They also contain epics, poems, and plays. Inscriptions are writings on hard surfaces, such as those of stones or metals. They were often ordered by the kings. Inscriptions were often records of a king's orders that he wanted the people to read or follow. They could also be records of a king's victories in battles. Which sources do you think would survive longer? Manuscripts or inscriptions? Yes, inscriptions are more likely to survive longer because they are made on hard material. However, it is difficult to write on hard surfaces. Therefore, it was more difficult to write inscriptions as compared to manuscripts. Now, let's talk about archaeological sources. They include pots, pans, tools, weapons, ornaments, buildings, paintings, sculptures, coins, and bones. These sources tell us a lot about the availability and usage of different materials by the people. As we discussed earlier, people who find and study archaeological sources of history are known as archaeologists. The people who study the past using literary sources of history are called historians. This year, let us all turn into historians and archaeologists as we learn more about our pasts. Thank you. सो आई होप आप सभी को ये वीडियो में जो भी कुछ पढ़ाया गया है ये समझ में आ गया होगा। एंड वंस अगेन मैं सभी पॉइंट्स रिपीट करता हूँ। सो यहाँ पर हमें दो चीज़ देखने को मिल रही है, एक बुक्स है और एक कंप्यूटर है। सो जनरली हम हिस्ट्री की बात करें तो हम बुक्स पढ़ते हैं या फिर कंप्यूटर से कोई ना कोई थिंग्स को सर्च करने की ट्राई करते हैं। सो हमें हिस्ट्री का नॉलेज कहाँ से मिलेगा?
from the books and from the computer. But यहाँ पर बुक्स पे और कंप्यूटर पे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, मीन्स हिस्ट्री की हमको इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं, तो ये चीज़ पढ़नी होगी कि हमें बुक और कंप्यूटर में से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, बट ये थिंग्स आई कहाँ से, लाइक 2000 ईयर अगो क्या हुआ था, ये सभी हमें कैसे पता चलता है। सो ये हमें सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री में से पता चलता है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो अबाउट द पीपल हु लिव्ड 10,000 ईयर अगो। सो हमें कैसे पता चलेगा कि 10,000 ईयर अगो पीपल अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते थे, तो इसीलिए हमें हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है। सो द थिंग्स दैट वर मेड और यूज्ड बाय पीपल इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। सो पास्ट में जो भी पीपल थे जो कुछ ना कुछ थिंग्स को बनाते थे या फिर कोई भी थिंग्स को यूज़ करते थे और ये थिंग्स अभी हमें मिल रही है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आर्टिफैक्ट्स। लाइक पास्ट में जो पोर्ट थे, जो कुछ कॉइन थे, ये सभी हमें मिले हैं, ये सभी इसका यूज़ करते थे, तो हम उसको क्या कहेंगे, आर्टिफैक्ट्स। सो यहाँ से हमें एक क्वेश्चन अराइज होगा कि हु फाइंड्स एंड स्टडीज दिस आर्टिफैक्ट्स। ये आर्टिफैक्ट्स को किसने फाइंड किया है, कौन फाइंड करता है और कौन उसकी स्टडी करता है। सो हियर राइट आंसर इज आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ये सभी थिंग्स को फाइंड करने का काम करते हैं और उसमें स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और हमें पता चलता है कि ये थिंग्स 10,000 ईयर ओल्ड है, 5,000 ईयर ओल्ड है, ये सभी थिंग्स हमें पता चलती है। सो आर्कियोलॉजिस्ट ये सभी हमें आर्टिफैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स का क्लासिफिकेशन है, देर आर टू क्लास ऑफ द आर्टिफैक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेसी सोर्सेस एंड सेकेंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेसी सोर्सेस की बात करें, लिटरेसी सोर्सेस रिफर टू रिटर्न सोर्सेस। जितने भी सोर्सेस हमें पास्ट में मिले रिटर्न फॉर्म में है, उसको हम कहेंगे लिटरेसी सोर्सेस। सिंपली मैं आपको बताऊँ, जो भी सोर्स पास्ट में लिखा गया था और आज हमें ये सोर्स पास्ट में से मिला है, तो हम उसको कहेंगे लिटरेसी सोर्सेस। एंड सेकेंड पॉइंट archaeological sources. So archaeological sources refer to the material things that tell us about the past. जो भी मटेरियल हमें मिला है, जो भी थिंग्स हमें मिली है जो पास्ट के रिलेटेड है, तो ये सभी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए। सो देर आर टू टाइप ऑफ आर्टिफैक्ट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेसी सोर्सेज एंड सेकेंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। Then let's learn about literacy sources classification. So there are two types of literacy sources. First of all, manuscripts and second, inscriptions. So what is the meaning of manuscripts? So manuscripts are handwritten sources of information. So manuscripts का meaning क्या होता है, जो भी handwritten हाथों से लिखा गया कोई मटेरियल है, कोई बुक्स है, उसको हम क्या कहेंगे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एंड इंस्क्रिप्शन की बात करें, इंस्क्रिप्शंस आर एनग्रेविंग्स ऑन हार्ड सरफेस। सो जो भी हार्ड सरफेस लाइक पत्थर पे, स्टोन पे कुछ ना कुछ हम लिखते हैं, माउंटेन पे, केव्स पे कुछ ना कुछ थिंग्स लिखी होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्क्रिप्शंस। सो लिटरेसी सोर्सेज की बात करें तो दो टाइप के लिटरेसी सोर्सेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड सेकंड इंस्क्रिप्शन। एंड मैन्यूस्क्रिप्ट की बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन सोर्सेज एंड inscription are engraving on hard surface. So manuscripts की बात करें, hand written sources of information, like they give us information about religious belief and practices, lives of the kings and medicines and science of a particular time. They also contain epics, poems and plays.
सो मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस बिलीफ, पास्ट में कौन सा धर्म, कौन सा रिलीजन होता था, कौन से रिलीजन में मानते थे, ये सभी हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है। देन किंग्स, लाइफ ऑफ द किंग्स मीन्स उस टाइम पे राजा कैसे होते थे, किंग्स कैसे होते थे, किस तरीके से लाइफ स्पेंड करते थे। देन मेडिसिन्स, उस टाइम पे मेडिसिन्स क्या क्या थी, मेडिकल फील्ड में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ था। देन साइंस किस टाइप की थी, तो ये सभी हमें मैन्यूस्क्रिप्ट से पता चलता है। एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स के टाइप्स हम देखें तो इपिक्स, poems and plays, these are the content of the manuscript. Then let's learn about inscription. So first of all, inscriptions, these are engravings on hard surface. Hard surface पे जो भी कुछ लिखा जाता है, like on the stone, on the mountains, on the caves, these all are inscriptions. So, inscriptions were often records of a king's orders that he wanted the people to read or follow. They could also be records of a king's victories in battles. So, inscriptions पे हमें जनरली राजाओं, किंग्स के ऑर्डर के बारे में हमें देखने को मिलता है। लाइक किंग्स ऑर्डर्स करते हैं कि आप ये लिखो। लाइक कोई बैटल होगी, उसमें किंग्स जीत जाएंगे तो वह उसके बारे में भी लिखेंगे कि आप इसके बारे में इंस्क्रिप्शन पे लिखो। और जो पीपल है, उसकी प्रजा है, उसको पता चलना चाहिए कि किंग्स कैसा था, उसने कौन कौन सी बैटल लड़ी थी और उसमें कौन कौन सी बैटल में उसको विक्ट्री मिली थी। सो इंस्क्रिप्शन का पर्पस एक किंग के लिए था कि किंग ऑर्डर करता था कि आप इंस्क्रिप्शन बनाओ, मेरे लिए कुछ ना कुछ लिखो। देन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच सोर्सेस डू यू थिंक सर्वाइव लॉन्गर? दो सोर्सेस थे, इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। ये दोनों में से कौन ज़्यादा टाइम तक सरवाइव करेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा इंस्क्रिप्शंस, बिकॉज इंस्क्रिप्शन वर रिटन ऑन द हार्ड सरफेस। सो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट होगा। एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हम एक पेज पे, पाम पेपर पे लिखते हैं, तो ये पेपर कभी कभी इंसेक्ट खा जाते हैं और ये पेपर बर्न होने की भी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। सो हम कह सकते हैं कि मैन्यूस्क्रिप्ट रिसोर्स survive longer than inscription survive longer than manuscripts. Then archaeological sources की बात करें, in this picture we can see all the resources are archaeological resources. Like हम यहाँ पर देख सकते हैं different resources like port, bone, coins, buildings, axe, weapons. These all are archaeological sources and ये sources हमें excavation के दौरान मिलेगा। आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेशन करेंगे और हमें सॉइल में से ये सभी पुराने एंशंट रिसोर्सेज मिलेंगे। सो दीज ऑल आर आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज। देन लास्ट पॉइंट, आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्कियोलॉजिस्ट कौन है? जो एक्सकेवेशन करेंगे, कुछ ना कुछ खोजने की ट्राई करेंगे फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द एनी सोर्स। सो आर्कियोलॉजिस्ट हमें आर्टिफैक्ट्स देंगे, एंशियंट टाइम में क्या हो रहा था, कौन कौन सी थिंग अवेलेबल थी, ये सभी हमें आर्कियोलॉजिस्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड हिस्टोरियन की बात करें तो हिस्टोरियन क्या करेंगे? एंशियंट रिसोर्सेज लाइक लिटरेसी सोर्सेज को पढ़ेंगे और हमें बताएंगे कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी। सो these all are related to history, like archaeologists are very important and historians are also important for the study of history. So this is about sources of the history. Okay, so now let's move to practice question 3.1 and practice question 3.1 में हमें ट्रू फॉल्स लिखने हैं। अगर कोई सेंटेंस फॉल्स होगा तो हमें उसका राइट सेंटेंस भी लिखना है। सो फर्स्ट है, इंस्क्रिप्शन आर हैंड रिटन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। सो दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस।
कोई हैंड रिटन सोर्स नहीं है, ये हार्ड सरफेस पे एनग्रेव करके लिखा हुआ सोर्स है. सो दिस इज राइट सेंटेंस. इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस. Then second point, pots, pans, coins and bones are the example of archaeological sources. Yes, this sentence is right because pots, pans, coins, bones, then weapons, these all are the example of archaeological sources. देन लेट्स मूव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.2. यहाँ पर हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन के बीच में डिफरेंसेस देखने हैं और सिमिलैरिटी भी देखनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सिमिलैरिटी की बात करें. सिमिलैरिटी आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस आर रिटन सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. दोनों के बीच में एक ही सिमिलैरिटी है कि दोनों एक रिटन फॉर्म है, एक रिटन इंफॉर्मेशन है पास्ट के बारे में. Then let's see about the differences. So manuscripts are generally written on soft surface such as palm leaves or paper, whereas inscriptions are engraved on hard surfaces such as metal or stone. सो दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम जनरली सॉफ्ट सरफेस पे लिखते हैं, लाइक पेपर पे. देन इंस्क्रिप्शन की बात करें तो हार्ड सरफेस पे उसको लिखना होगा, लाइक मेटल, स्टोन, माउंटेन, केव्स, ये सभी पर. Then second difference, manuscripts are difficult to preserve, but inscription can be preserved over long period of time. So दोनों के बीच में ये भी डिफरेंस है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम कम टाइम के लिए प्रिजर्व कर पाएंगे, बट इंस्क्रिप्शन को हमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम पे के लिए हम उसको प्रिजर्व कर सकते हैं. Then let's move to practice question 3.3. So here question is, which of these sources would survive longer, manuscripts or inscriptions? Write one reason. So क्वेश्चन ये है कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन दोनों में से कौन ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाएगा. सो राइट आंसर इंस्क्रिप्शंस, बिकॉज it would survive longer than manuscripts as they are written on hard surface. Manuscripts may get eaten away by insect and get destroyed over a period of time. सो इंस्क्रिप्शंस को हम ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर पाएंगे क्योंकि ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है. एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करें तो ये सॉफ्ट सरफेस यानी कि पेपर, पाम पेपर पे लिखते हैं एंड पेपर को इंसेक्ट खा जाते हैं कभी कभी, तो ये ज़्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं होगा. एंड कभी कभी ये डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, लाइक बर्निंग प्रोसेस होगी, जल जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो इसीलिए inscriptions would survive longer than manuscripts. Then let's move to practice question 3.4. So here question is, detectives are people who study evidence or proofs to find out the truth. Do you think historians and archaeologists work like detectives? Write a reason. सो डिटेक्टिव्स की बात करें, डिटेक्टिव्स का मीनिंग होता है जासूस, जो क्या करता है, स्टडी करता है एविडेंस एंड प्रूफ्स की और सच खोजने की ट्राई करता है, फाइंड आउट द ट्रूथ. सो आपको ऐसा लगता है कि हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट भी डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं? सो यस, archaeologists and historians work like detectives because they use all the sources about the past as clues and rethink the past bit by bit. सो आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस ये सभी डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं क्योंकि ये सभी पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं और क्लूज निकालने की, क्लूज खोजने की कोशिश करते हैं. सो हम कह सकते हैं कि जैसे डिटेक्टिव्स एविडेंस एंड प्रूफ्स की खोज करते हैं, उसको फाइंड करने की ट्राई करते हैं, इसी तरीके से आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस भी पास्ट में से नए नए क्लूज खोजने की, फाइंड करने की कोशिश करते हैं. सो दैट्स वाई historians and archaeologists work like detectives.
Then let's learn about inscriptions. So, inscriptions help us to know more about the past. They are found in a various scripts. So, इंस्क्रिप्शन से हमें पास्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा माहिती, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, और इसकी स्क्रिप्ट्स भी वेरियस होती है, डिफरेंट होती है. सो ये स्क्रिप्ट्स को हम कैसे रीड कर सकते हैं. लाइक पास्ट में हमें ये सेंटेंस मिला होगा, कोई एक इंस्क्रिप्शन होगा, उसमें ये लैंग्वेज में लिखा होगा. सो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका मीनिंग क्या है. सो इसके लिए भी एक मेथड होती है, मेजरमेंट होता है, तो उसके बारे में अब हम देखते हैं. सो एक सेंटेंस है, आई लव हिस्ट्री एंड म्यूज़िक. तो इसमें ये सभी जो डिफरेंट वर्ड है, इसका मीनिंग ऐसे सिंबल से हमें देखने को मिलता है. लाइक आई लव हिस्ट्री एंड म्यूजिक. देन क्वेश्चन है कि कैन यू फाइंड आउट व्हाट द कोड बिलो मीन्स ये एक कोड है, ये कौन सा वर्ड हमें देखने को मिलता है ये वर्ड में से, ये कोड में से. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हिस्ट्री लिखा हुआ है एंड ये उसके कोड है, एंड सेम कोड हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है. सो हम ये कोड में से फाइंड कर सकते हैं कि ये कोड हिस्ट्री के लिए है. सो दिस कोड इज़ फॉर द हिस्ट्री. लाइक यहाँ पर ये कोड है, ये एच के लिए है, ये आई के लिए है, ये एस के लिए है, TOR. सो इससे हमें पता चलेगा इंस्क्रिप्शन में लैंग्वेज होगी ऐसी, बट इसका हमें डी कोडिंग करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कोड कौन से वर्ड को रिप्रेजेंट करता है. सो इसी तरीके से हिस्टोरियन, इसके लिए ये कोड होगी. सो हमें अगर ये कोड मिले होंगे फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, तो हमें उसका डी कोडिंग करना होगा और जानना होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है. So the process that we just did to find out the meaning of an unknown language is known as decipherment. So ये एक प्रोसेस है जिससे हमें कोई अननोन लैंग्वेज के बारे में भी पता चलेगा. लाइक कोई अननोन लैंग्वेज का हमें सोर्स मिला है और हमें फाइंड करना है कि इसका मीनिंग हमारी लैंग्वेज में क्या होगा. तो ये प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डेसिफ्रमेंट. एंड वी डेसिफर ओल्ड अननोन लैंग्वेजेस विद द हेल्प ऑफ नॉन लैंग्वेजेस. एंड हम ओल्ड अननोन लैंग्वेजेस को रीड करने की ट्राई करेंगे फ्रॉम द हेल्प ऑफ नॉन लैंग्वेजेस. Then let's move to some NCERT exercise. So here question is differentiate between manuscripts and inscriptions. So manuscripts are written by hand, usually on palm leaf and on the special prepared bark of the tree known as birch. But inscriptions are written on hard surface such as stone, rocks or metals. Then manuscripts may get eaten away by insects and get destroyed over period of time. But inscriptions survive in their original form for a longer period as they are written on hard surface. सो जनरली दोनों के बीच में दो डिफरेंस है. मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम सॉफ्ट सरफेस पे लिखते हैं लाइक पाम लीफ एंड एक ट्री है बर्च उसकी बार्क पे. बट इंस्क्रिप्शंस को हम हार्ड सरफेस पे लिखेंगे ऑन द स्टोन, ऑन द रॉक्स और मेटल. एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स को हम ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कभी कभी इंसेक्ट इसको खा जाते हैं, क्योंकि पेपर को इंसेक्ट आसानी से खा सकते हैं. देन ये बर्न भी हो सकता है, जल भी जाता है, तो इससे हम उसको ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे. बट इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इसको हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ड सरफेस पे लिखा होता है. तो हार्ड सरफेस को इंसेक्ट भी नहीं खा सकते और ये बर्न भी नहीं होगी. देन हमारी सप्लीमेंट्री बुक्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 है, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉइन्स. लाइक
कोड हमें दिए गए और कोड में से हमें उसको फाइंड करना है, तो ये कोड का आंसर होगा कॉइन्स। तो आप सीधा अपनी प्रैक्टिस क्वेश्चन सप्लीमेंट्री बुक में ही लिख सकते हो उसका आंसर कॉइन्स। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 की बात करें तो इसमें एमसीक्यू है। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ रिवर इंडस इन संस्कृत? इंडस रिवर, इसका संस्कृत में नाम क्या है? तो इंडस रिवर वेरी फेमस एंशियंट रिवर ऑफ द इंडिया एंड इट्स नेम इन द संस्कृत इज सिंधु। सो इंडस रिवर का संस्कृत में नाम क्या होगा? सिंधु। Then second question, the name of our country India comes from the word, like option are Indus, Indica, Gangas and Indore. So here right answer is Indus. So the name of our country India comes from the word Indus. Then next question, where does the Bharat come फ्रॉम? सो भारत वर्ड, हमारे कंट्री का नाम क्या है? भारत। तो ये भारत वर्ड कहाँ से आया है? सो द भारत वर्ड कम फ्रॉम द ऋग्वेद। ऋग्वेद एक बुक है, इसमें से भारत वर्ड निकाला गया है, इसमें से भारत वर्ड ओरिजिन हुआ है। सो द ओरिजिन ऑफ भारत वर्ड इज फ्रॉम द ऋग्वेद। Then next question, what were the subjects on which books were written in the past? Which of these would you like to read? So books were written on gods, kings and tribes. There were books on kings and their empires. Many books were written on the religion. I would like to read stories about kings and tribes. So यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपको पास्ट में से कौन सी बुक पढ़ना अच्छा लगेगा और कौन सी बुक के बारे में लिखना अच्छा लगेगा। सो जो भी बुक्स गॉड के बारे में है, किंग्स के बारे में, ट्राइब्स यानी कि पीपल के बारे में, तो उसको पढ़ना मुझे अच्छा लगेगा। सो किंग के बारे में जो बुक्स होगी उसके एम्पायर के बारे में बताया जाएगा, ये बुक को पढ़ना काफ़ी अच्छा लगता है। सो कई सारी बुक्स ऐसी भी होती है जो रिलीजन के ऊपर है, लाइक हिंदू रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन, तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना अच्छा लगेगा। So this is about sources of history. I hope you understood very well about all the points, all the topics. In this lecture we have discussed about sources of the history, like two special sources. First of all, we have discussed about the literacy sources, and second we have discussed about archaeological sources. So I hope you understood very well about this topic, and if you have any doubts regarding this topic, you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will move further in the history. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.